basically whenever we have two charged particles and these two charged particles are separated by some small distance, let's say this distance is r. सर Q1 by Q2 R square है क्या? Yes, r square. हमें whenever we have two charged particles, let's say both are positively charged particles. So definitely we know that if two positively charged particles are placed, they have certain force of repulsion. Both are negative charged particles, again some force of repulsion will be there. One is positive, another is negative. So in that case, the force of attraction will be there. एक positive हो जाए, एक negative हो जाए, तो force of attraction होंगे. Yeah. So force of repulsion, force of attraction, ये तो हमें पता है कुछ होगा. Coulomb suggested mathematical relation for this force of interaction. Yeah. इनके बीच में उनका force जो है उसका magnitude क्या है, उसकी value क्या है? That is suggested by Coulomb's. Coulomb's law. Force is proportional to multiplication of the charge upon distance square. जितना ज्यादा charge होगा उन पे उतना ज्यादा force of interaction, either attraction or repulsion. जितना ज्यादा distance उतना कम force of interaction. As you increase the distance, their force of repulsion and force of attraction both decrease. Proportionally constant आ गया K यहाँ पर. In air and vacuum, this K is 9 into 10 to the power 9. ये इसका वैल्यू होगा. Clear? Yes, sir. अब इसका यूनिट क्या होता है, तुम मुझे यूनिट बता सकते हो? व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? तुम्हें फोर्स का यूनिट पता है, तुम्हें चार्ज का यूनिट पता है, तुम्हें डिस्टेंस का यूनिट पता है. व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ K? क्या होगा? न्यूटन मीटर बाय कूलम. न्यूटन मीटर बाय कूलम. न्यूटन into मीटर स्क्वायर, कूलम into कूलम per कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर per कूलम स्क्वायर. Is that okay? यस सर. सर वो कूलम स्क्वायर है क्या? क्या? वो यूनिट में नीचे सिर्फ कूलम है, कूलम स्क्वायर. क्या लगता है क्या होगा? एक चार्ज है, दो चार्ज है. तो हाँ स्क्वायर है सर. स्क्वायर. C स्क्वायर मीटर स्क्वायर. Force of interaction. तो वही फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए भी होगा ना? Interaction includes both attraction and repulsion. The word interaction means maybe attractive or repulsive. इससे मैंने interaction word specify कर दिया. Attraction भी है, repulsion भी है. सर तो उनकी वैल्यू एक ही होगी क्या? क्या मतलब वैल्यू एक होगी? एक बार मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगा, एक बार नेगेटिव चार्ज लूंगा तो अट्रैक्शन होगा, एक बार रिपल्शन होगा तो वैल्यू एक कैसे? मतलब वो तो डिपेंड ना चार्ज क्या होगा. मतलब इसका वैल्यू क्या होगा ये तो Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा. राइट? यस सर. यस सर. देखो, basically why we are studying this formula here, you have one complete chapter in physics, electrostatic, 12th standard, first chapter, that will take roughly 15 lectures.
तो फिर हम ये यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में क्या यूज है? हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है. We have to find out their force of interaction. That's why we need this formula. Clear? इसलिए हमने इसको यहाँ पढ़ा है. तो Q1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबहेडिंग फॉर एटम. Q1 charge of nucleus charge of nucleus Q1, Q2 is charge of electron. Q1 nucleus का charge, Q2 electron का charge. Nucleus and electron के बीच में attraction. Number of protons in the nucleus into charge of one proton. Nucleus में there are two particles. One is proton, another is neutron. Neutron is neutral. We have to find out charge for protons. कितने protons होते हैं nucleus में? जो atomic number है nucleus का. So plus positive charge Z into E. Number of proton into charge of one proton plus E. Charge of electron is minus E. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. सर कैन यू रिपीट तो आपका वॉइस थोड़ा फोर्स कितना आ जाएगा? Q1 plus ZE, Q2 minus E upon R square. So minus KZE square by R square. Q1 का वैल्यू पुट किया, चार्ज Q2 का चार्ज का वैल्यू पुट किया, फाइनल आंसर आ रहा है KZE square by R square with negative sign. Basically negative sign just represent force of attraction. Clear? Excuse me, sir. कुछ डाउट है तो क्लियर करो. Excuse me, sir. Yes. प्लस जेडी कैसा है? ये पार्ट क्या लिखा है? बोलो इसको, बताओ क्या लिखा है? Proton. Protons. न्यू देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. हीलियम. हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है. सो Z एटॉमिक नंबर 2. एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? E. टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, टोटल चार्ज ऑन द प्रोटॉन्स एट द न्यूक्लियस. तो वही स्टेप इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करेंगे क्या? चार्ज टू ढूंढने के लिए नंबर I ऑफ am इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज going ऑफ to find out force of attraction between one electron and the nucleus. Nucleus में पूरा पॉजिटिव चार्ज एक साथ है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड. हम एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालते हैं. सर मतलब हमें 11th में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का ही मतलब फोर्स निकालना है. कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, मैंने इतना और स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कितने भी हो सकते हैं. 11th में बहुत कुछ निकालना है. अभी इस चैप्टर में क्या निकालना है वो मैंने बताया. सर कूलम्स लॉ का ही टॉपिक है ना? क्या? कूलम्स लॉ का ही टॉपिक है ना सर? हाँ.
हमें वो फॉर वन एटम वापस लिखना है। क्या पूछ रहे हो? तो फॉर वन एटम आपने जो पहले लिखा है तो वापस लिखना है इसमें। जितना बोर्ड पे लिखा है सब लिखना है। सर जेडी क्या है? किसका क्वेश्चन है? हिमांशु। हाँ हिमांशु, तो जो तो अभी प्रोटॉन। लेटेस्ट है तुमने? सर इंटरैक्शन के बाद क्या लिखा है आपने? between मैं पूरा पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी PE, it is the energy due to interaction between का short B/W between two charged particles. Potential energy is K(Q1 Q2 by R. Force of interaction था K(Q1 Q2 by R square. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है K(Q1 Q2 by R. सिर्फ स्क्वायर की जगह R आ गया। अच्छा, एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे R स्क्वायर डिस्टेंस इनटू R किया। मतलब वैसे डायमेंशनली तुम मैच कर सकते हो, याद रखो। अब Q1 Q2 क्या है? लास्ट टाइम क्या थे Q1 Q2 एटम के केस में? फॉर एटम कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, वही Q1 Q2 यहाँ है। तो लास्ट फॉर्मूला इस फॉर्मूला में चेंज कैसे? R स्क्वायर का ही है ना, तो R स्क्वायर का चेंज आ गया, R स्क्वायर की जगह R आ गया। सब कुछ सेम है जैसा पहले था। इज इट ओके नाउ? yes sir यस। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो ऑलरेडी उसके कंटिन्यूएशन में हेडिंग थी ना, तो मैंने वापस से नहीं लिखा है Q1 Q2। क्लियर हिमांशु? यस सर। सो जब भी दो चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, they always associated with some energy called electrostatic potential energy, and the value of electrostatic potential energy is K(Q1 Q2 by R. सर मतलब पहले हमने फोर्स निकाला और अभी एनर्जी। Yes, force between two charged particle, energy of a charged system, a system which consists two or more than two charge. सिर्फ फॉर्मूला अट्रैक्शन के लिए वैलिड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। कौन सा फॉर्मूला? फिर लास्ट वाला P पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ये ZD। अट्रैक्शन छोड़ो, ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम के लिए वैलिड है जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अट्रैक्शन तो है ही, पर साथ में बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन है, सिर्फ एटम जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। या सर तो ये एक एटम के न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में का रिलेशन है ना? फिर से बोलो। सर ये एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन है ना? यस, बेसिकली दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सर आपने लिखा है नेगेटिव साइन भी प्रेजेंट फॉर अट्रैक्शन। सर अट्रैक्शन लिखा है, फिर रिपल्शन नहीं आएगा? अरे एटम कहाँ में पे रिपल्शन कैसे होगा? मतलब मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे क्या आएगा? अट्रैक्शन आएगा, रिपल्शन आएगा? attraction अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। सर मतलब पॉजिटिव साइन आने पे वो रिपल्शन दिखाएगा ना? हाँ, यदि इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव आता है तो अट्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए, सर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देन माय आंसर इज नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट force of attraction between two charged particles. If we are getting positive here, then positive sign represent force of repulsion. ये क्वेश्चन का आंसर, राइट? तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, वो शायद एक बच्चे को पता होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जहां पे अट्रैक्शन है वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव फोर्स आएगा, और जहां पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव फोर्स आ रहा है वहां रिपल्शन होगा।
Got it? Yes, Yes, sir. sir. सर एक डाउट, आपने जो फॉर्मूला बोला आपने जो फॉर्मूला बोला उसमें बस एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो ज्यादा होंगे जब ज्यादा में देखेंगे, सब देखेंगे हम। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। और वो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है because the next model of atom, that is Bohr's model of atom, which is defined only for the atom which contain one electron. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डिफाइन ही नहीं है। सर हम्म, सर ये जो फॉर्मूला बोला ये हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में का फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ना उससे? दो चार्ज के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन, कूलम्ब्स लॉ। सी, जैसे मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, इन द सिमिलर मैनर वी हैव angular momentum. Now what is this angular momentum? It is defined when any particle is moving in angular path. कोई भी पार्टिकल जब एंगुलर पाथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये डिफाइन होता है। क्लियर? वो था मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये है सॉरी वो था मास इनटू वेलोसिटी, ये मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। एक रेडियस का टर्म एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर। क्लियर? तो रेडियस का टर्म एक्स्ट्रा आने से क्या हो गया, वो एंगुलर मोमेंटम बन गया। इज दैट ओके? मतलब डेफिनेशन है, जैसे मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। यस सर, मास इनटू वेलोसिटी वाला सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लिखे। नहीं, मास इनटू वेलोसिटी यू कैन डिफाइन इन एनी पाथ, इवन स्ट्रेट लाइन, इवन सर्कुलर पाथ, बट यस एंगल आ रहा है इसलिए रेडियस ले लिया। define this only in circular path. एंगुलर मोमेंटम को सिर्फ सर्कुलर पाथ पे डिफाइन किया जाता है एंड नॉट कंपलसरी कि 100% सर्कुलर हो, कर्व पाथ बेसिकली। और जो मोमेंटम होता है वो किसी भी पाथ, क्योंकि मास और वेलोसिटी है तो किसी भी पाथ पे हो जाएगा। रेडियस कब डिफाइन होगा, जब कर्व पाथ हो। तो फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r है। नेक्स्ट टर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। क्लियर? मैं समझा देता हूँ फिर कॉपी कर लेना।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिनोटेड बाय एफ CNT, सेंट्रीफ्यूगल का CNT लिख दिया जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फीलिंग देता हूं क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल। मेरे पास एक कुछ वायर है, लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के एंड पर मैंने एक स्ट्रिंग को टाइट कर, इसके एंड पर एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को मैं कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूं। क्या वो जो भी यहाँ पे पार्टिकल है, स्टोन है, लेट्स से हाफ केजी का स्टोन है, क्या वो एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरे हैंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा? देखो दो केस है, मैंने उसको होल्ड किया है पॉजिटिव, नाउ आई एम रोटेटिंग दिस थिंग। किस केस में मेरे हाथ पे ज्यादा फोर्स लगेगा? जब स्टेशनरी है, When it rotates. सेकंड केस रोटेटिंग केस रोटेशन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स पिक्चर में आ रहा है which is acting in radially outward direction, that force is called centrifugal force। एक और इसका एग्जांपल लेता हूं, when you are sitting in a car and car is going on a curved path, you will feel certain force in radially outward direction ऑपोजिट डायरेक्शन outside the curve path। If the curve is in this manner, you will feel force this side। और सभी ने फील किया होगा कभी ना कभी, कार में, बस में, कहीं पे जब तुम बैठोगे तो एक फोर्स फील होता है, मतलब रेडियली ऐसा कुछ चाहते हैं हम। क्लियर? That force which we are feeling in radially outward direction is called centrifugal force। Now the question is, what is the centrifugal force on this electron? Mass of the electron greater the mass, greater the force acting on this electron, greater the speed। स्पीड के कारण ही तो आया, यदि हम स्टेशनरी हैं तो कोई फोर्स नहीं होगा, तो जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा वो फोर्स एक्ट करेगा। तो mv स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r। कुछ बच्चों ने सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ सेंट्रीपिटल भी पढ़ा होगा 9th 10th में। मैं सेंट्रीपिटल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, क्या होता है क्या नहीं होता है। यू हैव वन कंप्लीट चैप्टर इन फिजिक्स, सर्कुलर मोशन, अभी आने वाला है कुछ टाइम के बाद, मे बी आफ्टर 1-2 मंथ्स। या तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ना कंफ्यूज करो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज अ फोर्स felt by any kind of particle when moving in a circular path। हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, mass of electron, velocity of electron, radius of circular orbit। कॉपी करो, और अब डाउट हो तो कुछ पूछो। सर एक डाउट सर, आपने जैसे बोला, जैसे अगर हम अगर एक बॉल नॉट ऑडिबल, डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारे आवाज में, बिकॉज़ ऑफ सम माइक इशू और समथिंग एल्स। सर वो क्या इट एक्टिन, क्या सर वो वहाँ पे क्या रेडियली लिखा है? इट रेडियली एक्टिन एफ सेंट है। चलो कुछ नहीं लिखा, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बस कंफ्यूज ही मत हो, ठीक है। अभी नहीं सर, उधर नहीं, वो आपने सेंटेंस लिखा ना उसमें इट एक्ट इन, वो क्या है? रेडियली, रेडियली क्लियर है, क्लियर नहीं है मानस, क्लियर अभी भी क्लियर नहीं है। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। बहुत बड़ा डाउट, हाँ बहुत बड़ा डाउट है। बट तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, या तो उस माइक को थोड़ा सा रिकनेक्ट करके देखो, या मोबाइल से कनेक्ट करके तो हटा के डायरेक्ट बोल दो एक बार। सर अभी आ रही? अभी आ रही है। सर अगर हमने एक रोप के एंड पे बॉल एज ए इलेक्ट्रॉन पुट किया, उसको जोर जोर से घुमाया, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बॉल डायरेक्ट छूट के चला जाता है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन में भी पॉसिबल हो सकता है? देखो दो चीजें, तूने बोला हमने बहुत जोर जोर से घुमाया और एक वक्त ऐसा आता है। अच्छा वो वक्त कब आएगा? जब तुम्हारी स्पीड बढ़ते चले जाएगी। क्या यदि तू कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहा है तो वो छूटेगा क्या? कभी भी छूटना होगा तो पहले ही छूट जाएगा। यदि एक बार नहीं छूटा एंड इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या वो हमेशा साथ में रहेगा? हाँ सर, साथ में रहेगा। नहीं छूटेगा सर, फिर नहीं भाई छूटेगा। यदि हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो छूट सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर कब जाएगा? यदि उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, और स्पीड यदि कांस्टेंट है नहीं जाएगा। सर मिशन मंगल ऐसे ही किया था ना, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में घुमा के लास्ट में स्पीड बढ़ा के निकाला था। मूवी में तो ऐसे ही किया था मिशन मंगल। सर मतलब कि हम किसी हेवी ऑब्जेक्ट की तरह ऑर्बिट करें ज्यादा देर तक, तो उसकी ग्रेविटी हमारी स्पीड बढ़ा देती है क्या, जैसे इंटरस्टेलर में हुआ था?
यार देखो उस पे मैं बताता हूँ तुम्हें, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, ये साइंस, ये एटम, ये वेलोसिटी बोर्स ने डिस्कवर की थी एग्जैक्टली 1911 में, 110 साल पहले। हम 110 साल पुराना साइंस पढ़ रहे हैं, और जो मॉडर्न साइंस है, जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं। अच्छा है नहीं होता तो समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो अभी इन चीजों को मैं एग्जैक्टली उनसे बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑल वो क्लासिकल साइंस में नहीं काउंट होती। दिस आर बेसिकली कंप्लीटली क्लासिकल साइंस। और मॉडर्न साइंस को समझने के लिए भी क्लासिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, न्यूटन्स लॉ है, कुछ फंडामेंटल थिंग्स हैं जो हमेशा ही वैलिड होती है। तो उससे मत रिलेट करने की कोशिश करो, ना करवाओ भी मुझसे यार। और कुछ मूवीज मैंने देखी, कुछ मूवीज नहीं भी देखी, तो मैं नहीं भी बता पाऊंगा। सर और एक डाउट है। हाँ, तो अगर रिएक्शन के वक्त फिर इलेक्ट्रॉन कैसे पास हो जाते हैं सर? रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे पास हो जाते हैं, ऐसा मतलब आयनिक रिएक्शन में ऐसा? क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके NaCl कैसे बन गया, Na प्लस Cl माइनस कैसे बन गया, राइट? यस सर। तो अभी तक मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं जाता है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। ये तो तुमने पूछा था कि सर वो यदि पास करेंगे तो एक टाइम बाहर चला जाएगा, मैंने उसका आंसर दिया था यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो अपने आप बाहर नहीं जाएगा। अब फोर्सफुली कोई थर्ड पार्टी पिक्चर में आ रही है, थर्ड फोर्स पिक्चर में आ रहा है, एंड इफ इट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम, दैट माइट बी पॉसिबल। वो तो हो सकता है, देखेंगे, वही हमें देखना भी अभी बोर्स मॉडल हो गया, राइट? सर बोस सर वो मॉडल से पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रिक आएगा ना? इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोर्स मॉडल की बात कर रहा हूं, ठीक है? सर वो यूनी अरे यार तो मैं तो बहुत बीच में बोलता हूं, थोड़ा सा रुको तो सही में, कौन सा चीज मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट का वेट करो। मतलब थोड़ा सा समझो, नहीं समझ रहा तो मैं सब कुछ एक बार मैं लिखूंगा, मैं सब कुछ पढ़ के बताऊंगा ना। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li2 प्लस। देखो, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोर्स मॉडल इज बेसिकली इट इज द ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, जो उसका फर्स्ट पॉइंट। It is valid, it is useful only for uni-electronic atom or ion. Uni-electronic means which contain only one electron. Uni means one, electronic electron, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। या अब एक इलेक्ट्रॉन किसमें? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम प्लस, हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन्स। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन अभी भी बचे। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, He प्लस। Li2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन। B3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स पे कोई कंपल्शन नहीं, देयर इज अ कंपल्शन ओनली ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? वैसे भी हम प्रोटॉन को चेंज कर नहीं सकते न्यूक्लियस, वी कैन चेंज ओनली इलेक्ट्रॉन।
Akshay Kadam, please mute yourself. वेट कर रहा हूँ, कॉपी करो पहले। हाँ, समर्थ का क्वेश्चन था सर, फिर बोर मॉडल ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के लिए भी वैलिड है? यस समर्थ, ड्यूटेरियम ट्रिटियम व्हिचएवर कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन सबके लिए वैलिड है। नितिन का मैसेज था सर पीसीबी के लिए केमिस्ट्री। सर यस सर ये यूनि इलेक्ट्रॉन एटम पर वैलिड है तो सिर्फ 4 ही एटम्स पर वैलिड है, 4 ही एलिमेंट्स पर। चार एटम के बाद डैश डैश दिख रहा है तुम्हें? यस डैश का मतलब बताओ क्या होता है? कंटिन्यू हम्म आगे और ये सर पर हम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते? इलेक्ट्रॉन तो सब में है, एक एक, 3 तो किसी में भी नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे जितने एलिमेंट्स होंगे सब नहीं मतलब निकाल सकते सर यानी वो ये पूछ रहा है कि वैलेंसी किसी की 4 से निकाल ज्यादा ही हो नहीं सकती सकते, वो कितनी ज्यादा एनर्जी theoretically लगाएगी। theoretically whatever number you want you can remove the electron. Practically maybe up to 4-5 electron. Electron is revolving around the nucleus in a fixed orbit without losing energy. See, first point में ये कहा गया, last model, Rutherford's model, according to Rutherford's model, one of the drawback when electron is moving around the nucleus, why this electron is not collapsing to the nucleus? और nucleus पे collapse क्यों नहीं हो रहा था? क्या reason था उसका? तो उसका आंसर है they are not losing any energy. वहां पे बोला गया एनर्जी लूज कर रहा है। चलो बोर्ड्स ने ये तो सजेस्ट किया एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। क्या बोर्ड्स has suggested some relation for it?
कुछ मैथमेटिकली से बताया भी क्या क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? यस, you have mathematical relation for that also, that energy is constant without losing energy, hence this orbit are also called stationary orbit. The word stationary means fixed, constant, so without losing, right? ना उनका रेडियस चेंज हो रहा है, ना उनका एनर्जी चेंज हो रहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट में सिर्फ बताया गया ऐसा हो रहा है, आगे के पोस्टुलेट में से डिराइव भी करेंगे। तो ना एटॉमिक रेडियस चेंज होगा, ना एनर्जी चेंज होगा, hence they are called stationary orbit. They are numbered as 1 2 3 4 5 up to last, theoretically infinite, practically 7 8 तक जाते हैं। First orbit is also called K shell, second orbit L shell, M shell, N shell, ये पढ़ा है तुमने बचपन में, राइट? पढ़ा है 9 10th में? यस सर। Yes, सेवेंथ में पढ़े। यस सर। ओके, तन्वी क्लियर है जो भी तुम्हें नहीं दिखा था? यस सर। एक डाउट है यस सर, हमें इलेक्ट्रॉन और मतलब एटम बहुत छोटा है और अभी तक हम देख नहीं पाए, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उसके बीच का डिस्टेंस कैसे हमने प्रेडिक्ट किया? मैथमेटिकली, मैथमेटिकली। ये बताओ, सन पे कभी कोई गया है क्या? नो सर। नो सर। कैसे हमने डिस्टेंस प्रेडिक्ट किया सन और अर्थ का? मैथमेटिकली। बायोलैट्रिक्स एंड मैथमेटिकल। कुछ तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही किया है, तो ऐसा इसका भी किया है, करते हैं भी, करेंगे भी हम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं आवाज आई, कोई क्या बोला? सर मतलब मैथमेटिक्स इस यूनिवर्स का हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है क्या? नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा और एप्रोप्रिएट मैं करता हूँ, क्या सर हर चीज का मैथमेटिकल प्रूफ है, हर चीज का मैथमेटिकल डेरिवेशन है? नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो मैं अब बता नहीं वाला हूँ थर्ड पोस्टुलेट। मतलब बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती हैं, हमें पता है, बट हम उसे मैं एक सिंपल सा लॉजिक लेता हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इस चीज का मैथमेटिकली प्रूफ दे सकते हो? मतलब मैथमेटिकली प्रूफ क्या, वो दिख रहा है तो है सामने, कोई इसे गलत नहीं बता सकता। तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं, ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो होते हैं। व्हाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव NO ओनली 1000 केल्विन, बिफोर 1000 केल्विन दे डू नॉट रिएक्ट? क्या इसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ है? तो ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली प्रूफ हर चीज का है। मतलब कुछ चीजें हैं जो फैक्ट है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होती है, तो होती है, हमें पता रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। Force of attraction on revolving electron is balanced by centrifugal force. Second postulate में ये बताया गया why electron is not going inside the orbit, not going towards the nucleus, and why it is not going outside the nucleus. बोर्ड पे देखना, कॉपी मत करना। ये nucleus, ये electron, this electron has force of attraction towards the nucleus, and it has one force which act in radially outward direction called centrifugal force. यदि ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए एक दूसरे से, ना इलेक्ट्रॉन अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इज 0, तो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे कोलैप्स नहीं होगा, मूव करता रहेगा। या जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पूरे सर्कुलर पाथ पर देयर आर टू फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, वन इनसाइड वन आउटसाइड, एंड बोथ आर बैलेंस्ड ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। जब तक कि कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब ना करे, वो बात अलग है। अब कोई थर्ड सब्सटेंस आता है, थर्ड पार्टी आती है, दैट कैन डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन, दैट कैन डिस्टर्ब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक बात अलग होगी। बट इन जनरल इफ इट इज मूविंग, इट कंटिन्यूज टू मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। क्लियर?
यस ओजस। सर तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमता ही क्यों है सर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी क्यों नहीं रहता? इसका आंसर मैं ऐसे देता हूं, एक बार इलेक्ट्रॉन ने घूमना चालू कर दिया, क्लियर। अब मान ले जब अर्थ बना, सब सिस्टम बना, यूनिवर्स बना, भगवान ने इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया एक बार, अब वो घूम रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। जब तक कि कोई न रोके वो इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा इंटरप्रेट। घुमाया किसने? घुमाया किसने? भगवान ने। मतलब देखो ऐसा है, क्वेश्चन है सर वो इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है, अपना आराम से रखा रहता है एक जगह तो सही रहता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि मान लो वो नहीं घूम रहा होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मर्ज हो जाते हैं, एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, एटम डिस्ट्रॉय होता है, क्या बचता? न्यूक्लियस खत्म, मतलब वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन ना एटम ना कुछ। तो ऐसा हुआ होगा जब अर्थ नहीं बना होगा, मतलब कुछ भी नहीं। जब बना है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ बिकॉज ऑफ सम रीजन वी आर गेटिंग सम स्टेबिलिटी, कुछ तो रीजन है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए, एटम एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, ठीक है सर, व्हाई दिस एटम इज स्टेबल, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कोलैप्सिंग? तो मेरा आंसर ये, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इट इज नॉट कोलैप्सिंग टू द न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है कि सर वो रोटेट ही क्यों कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, सर वो रोटेट कर रहा है तो कौन सा फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? यस यस सर। वो यही क्वेश्चन है कि क्यों रोटेट कर रहा है, क्यों एक जगह पे नहीं है। वो मतलब ऐसा है कि जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो नहीं है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सर वो इनर साइड में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है कि प्रोटॉन की वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है, अट्रैक्शन अंदर लगता है। अंदर वाले तीनों फोर्स अट्रैक्शन है, बाहर वाले तीनों फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है। एक ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशन पे मैंने शो किया ड्यूरिंग द रोटेशन। सर और सेंट्रीपिटल फोर्स का कहाँ पे? तो ऊपर लिखा है वो ये बताया कि अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है, कि वो उसका फुल फॉर्म है? फिर से बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अट्रैक्शन। सर वहाँ पे आपने लिखा है ना, तो वो ये बता रहे हो कि दोनों का? सर आपने वो लिखा है ना, मॉड में सर आपने लिखा है ना वो, हाँ वो, हाँ जो यहाँ एक्सप्लेन किया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन पर जो बाहर की तरफ लग रहा है, जो अंदर की तरफ लग रहा है, वो फोर्स बैलेंस है। अट्रैक्शन इनसाइड, सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड। अट्रैक्शन kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r। क्या अभी क्लियर है? यस Why we are taking mode? Because force of सर attraction is क्योंकि negative. उसकी नेगेटिव है वैल्यू। और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन। तो हमें तो पता है अट्रैक्शन, हम तो बोल ही रहे हैं अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल, तो हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना है। यार हमें जस्ट मैग्नीट्यूड, इनसाइड वाला मैग्नीट्यूड आउटसाइड वाला मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो वी आर जस्ट इक्वेटिंग मैग्नीट्यूड। फर्स्ट मैथमेटिकल रिलेशन फ्रॉम बोर्स मॉडल, ये हमें यहाँ पे मिल गया है, हाईलाइट करके लिख लेना है। ये कूलम्स लॉ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वन में क्यों मैंने पहले ही बता दिए थे, क्योंकि यहाँ पे यूज करना था, नहीं तो मुझे यहाँ पे डिटेल में जाना पड़ता, इसलिए वो हेडिंग्स पहले कवर करें, राइट।
सर एक डाउट है, बोलो, सुन रहा हूँ। अगर ऐसा ही मतलब अगर एक ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, सब सेम चीज है, पर एक वक्त ऐसा आएगा ना दोनों मतलब एक दूसरे से टकराएंगे और रिपल्शन की वजह से अपना ऑर्बिट लूज कर सकते हैं, तो ऐसा रियल लाइफ में क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो टकराएंगे ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं टकराएंगे। सर वो H के पहले X लिखा है कि N लिखा है? N लिखा है। X कैसे दिख रहा है यार? N नहीं दिख रहा है, X दिख रहा है क्या? तो क्यों नहीं टकराएंगे इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। एक रिपल्शन होते हैं, ऑर्बिट लूज कर सकते ना, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे ना अपनी जगह से। नहीं होते। देखो, एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 इंटरेक्शन है, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन, एक न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, इसलिए वो एटम के बाहर नहीं जा रहा है, और रिपल्शन उतना डोमिनेट नहीं कर रहा है। यदि रिपल्शन डोमिनेट कर रहा होता तो वो एटम के बाहर चला जाता। हमें एटम दिखने के पहले ही वो एटम में नहीं रहता। ऑलराइट, जो हमें दिख रहा है एटम इज स्टेबल, एग्जिस्ट इन नेचर, तो वहां पे अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे होंगे। इवन वी नीड टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्यों लॉट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है? क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो इतना डोमिनेट कर रहा है कि उसको रिमूव करना पड़ रहा है, राइट? यस सर। सर H क्या रिप्रेजेंट करता है? किसने पूछा है क्वेश्चन? प्लैंक्स कांस्टेंट। आदित्य ने? नहीं सर, मैं बता रहा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तुम प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी है ना हमने लास्ट लेक्चर में? यस सर, यस सर। यस। मतलब लेक्चर नोट्स पढ़ के आओ, नहीं तो 6.6 into 10 to the power minus 34 याद है सर? हाँ, इसलिए मतलब जो मुझे लगा कि कुछ नया टर्म है इसलिए मैंने लिख दिया। MVR पहले ही मैंने डिफाइन किया था, H पहले डिफाइन कर चुका हूँ, पाई तुमने KG1 में पढ़ा है, तो जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वो मैंने नहीं बताया, जो नया था N नंबर ऑफ ऑर्बिट बता दिया। चलो, थर्ड पोस्टुलेट which gives one of the mathematical relation, another mathematical relation, angular momentum is always quantized. The word quantization, quantized means whole number multiple of something. Planck's quantum theory में total energy quantized, so total energy n whole number into h, यहाँ पे n whole number into h by 2 pi. So angular momentum is nh by 2 pi, where n is number of orbit. First orbit में 1, second orbit में 2, third orbit में 3 and so on. अब क्वेश्चन आया, सर ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों बैलेंस है, क्या हो रहा है, क्या रीजन है, ये कहां से आ गया रैंडम MVR equal to nh by 2 pi? क्या इसका कोई डेरिवेशन है? इसका डेरिवेशन बोर्स ने सजेस्ट नहीं किया था, इसका डेरिवेशन बोर्स थ्योरी के आने के 15 साल के बाद डेरिवेशन आया था। तो बोर्स को कैसे पता चला? ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उसने देखा ऐसा कुछ हो रहा है। क्या आइस से देखा? डेफिनेटली एटम इलेक्ट्रॉन को तो देख नहीं सकते। फिर कैसे देखा? उसने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, and on the basis of that observation he suggested this relation. Clear? So ये based on observation है, ये mathematically है, ये भी सही है, ये based on observation ये भी सही है। Clear? So chemistry दोनों का combination चलेगा। chemistry की definition में तुम बताओ, it is the subject of facts and knowledge. हमें पता ही होना चाहिए, knowledge होना चाहिए पार्टिकल का, मेटर का, कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या है, मतलब all things cannot be mathematically derived. क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। Now we have two mathematical relations, 1, 2, two variables, K constant, atomic number किसी भी एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट, E कांस्टेंट, रेडियस अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग होगा, मास कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, वेलोसिटी और रेडियस कुछ होगा।
two equation, two variable, velocity and radius. Can you derive their value? V equal to something, R equal to something. Derive कर सकते हो इन दोनों का यूज करके? स्क्वायर कर। यस सर। करो ट्राई, अपने करना, या आप उसमें भी कर लेना, नॉर्मल नोटबुक में भी कट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना इतना है सर उसमें मास रेडियस को यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रिप्लेस करो। तो जब रिप्लेस करोगे तो v इक्वल टू समथिंग आ जाएगा और उस v को यहाँ रखना तो फिर रेडियस आ जाएगा। चलो 2 पाई k z e स्क्वायर करने तो सबको करने दो मानस। सर r square is equal to v. I am giving you 2 minutes. Calculate v and r. कुछ बच्चों से मुझे बात करने दो जिनकी आवाज नहीं आई मुझे अब तक। हर्षिता, गोपाल यादव, समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपने क्या बोला, वापस बोलो एक बार। Calculate v and r, velocity and radius. करण, करीना, यस सर। सर समझ में आ रहा है दोनों को? यस सर। ओम, बोथ, देवरेन, निकम। यस सर। यस सर। पवन की आवाज कभी नहीं आती। पवन भटकर, प्रमुख, यस सर। योगिनी, समझ में आ रहा है? यस सर। बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से सिग्निफिकेंटली हमने कुछ स्टार्ट किया है, कुछ कंटेंट कवर हो रहा है, मतलब जहां से क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली, तो एक्चुअल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ जो पहले किया वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, आई थिंक यूजफुल नहीं है। फंडामेंटल से पता होने चाहिए, नहीं तो ये सारी चीजें हम समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे फिजिक्स भी तुम्हारा ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है शायद, अभी तो वही चल रहा है ना, मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स। यस सर। यस सर। आगे फिजिक्स करना मुश्किल होता है। बेसिकली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल फिजिक्स, बट वो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना जरूरी है। क्या मैं थोड़ा सा 15 मिनट है, हालांकि 15 मिनट इनफ है अभी। R equal to NH upon 2 pi mv। R equal to NH upon 2 pi mv। इसको रिप्लेस करते हैं हम, k z square by r square mv square by r। 1 r will cancel out, बचा एक r, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। NH 2 pi mv equal to mv square। So mv square as it is, kz square, r को replace किया nh upon 2 pi mv। One of the velocity will cancel out, just mathematical arrangement है, कुछ भी नहीं है ना। r को nh upon 2 pi mv यहाँ पे replace किया और उसको v के लिए solve कर रहे हैं। Mass will cancel out, right side velocity बचा वही हमें चाहिए, लेफ्ट साइड क्या बचा वो भी देख लेते हैं हम। टू पाई के ई स्क्वायर बाय h z अपॉन n। 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h z बाय n। इन्हें रखा स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे रखा बाहर, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके बाद। पहले मुझे बताओ क्या इतना मैथमेटिक्स समझ में आता है तुम्हें? सर वापस एक बार। यस सर। यस सर। मैंने सिर्फ यहाँ पर r को यहाँ से nh अपॉन 2 पाई mv इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया है। एक r कैंसिल हुआ, kz square as it is, mv square as it is, r is replaced by this value nh upon 2 pi mv।
तो कटपिट हो रहा है, कटपिट किया है तो बचपन में कर रहे थे हम, नर्सरी से करते आ रहे हैं, राइट। मास कैंसल, वन वेलोसिटी कैंसल, एक वेलोसिटी बचा 2 पाई के ई स्क्वायर बाय 8 जेड बाय एन। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी कर लेना। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट, इन्हें हमने रख दिया वैल्यू ऐसा यूनिट में, तो ये आता है 2.18 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड आता है। Z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1, हीलियम +2, Li2 +3, बेरिलियम 3 +4, ये चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी, वो चेंज हो सकता है। जो चेंज हो सकता है उसे बाहर जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू पुट कर दिया। तो फाइनली v क्या आ रहा है, कांस्टेंट जनरली नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी का कांस्टेंट है v नॉट z by n, v is proportional to z by n, v नॉट is constant। ये 4 मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करते तो आना ही चाहिए, नहीं याद भी रखना है। सर वो 10⁻⁶ है ना? यस, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, 2 मिलियन मीटर। 2 मिलियन मतलब 2 लाख, 2 लाख नहीं, 2000 किलोमीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 2000 किलोमीटर चलता है। मतलब सोच सकते हो लाइट तो की वो स्पीड, दिखता ही नहीं होगा, माइक्रोस्कोप से भी देखो तो नहीं दिखता है ना, इसलिए तो नहीं दिखा आज तक इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करो, ये जो वेलोसिटी डिराइव की है ना, कॉपी करके इसको, मतलब पहले पूरा कॉपी करना है, फिर इस वेलोसिटी को यहाँ पे रख दो तो रेडियस आ जाएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट वैल्यू। साक्षी समझ में आया वेलोसिटी रिलेशन? Yes, sir. अच्छा हाँ, वन मोर अनाउंसमेंट, टुमारो यू हैव PTM राइट? Yes, sir. Just like already we had done with I think 1 month now, even more than 1 month. 19 या 20 को बैचेस स्टार्ट हुआ था, 5 वीक्स के आसपास हो चुके हैं। तो एक जनरल डिस्कशन, अभी डेफिनेटली ऐसा बहुत ज्यादा कुछ एजेंडा नहीं है, जस्ट एक जनरल डिस्कशन तुम्हारे साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना अकॉर्डिंगली। तो मे बी जस्ट 40-45 मिनट्स 1 आवर का, हमारे एंड से 30-40 मिनट्स का हम कुछ बोलेंगे, कुछ एडवाइस कर देंगे, कुछ तुम्हारे कंसर्न होंगे वो सुन लिए जाएंगे। क्लियर? जो भी तुम्हें लगता है कि एक्चुअल जो कंसर्न है, वैसे तो बेस्ट है तुम हमें लेक्चर के टाइम पे ही बताओ, क्यों हम पीटीएम का वेट करें उसके लिए, मतलब 5 वीक का वेट करके फिर बताओगे पीटीएम। सो इट इज बेटर टू टेल कंसर्न डायरेक्टली टू टीचर। तब तुम्हें कुछ ऐसा लगता है डायरेक्टली कभी भी सर लेक्चर में ही बोलो, मैसेज करके बोल दो। सर वो सुबह क्लासेस होते तो अच्छा था, सुबह सुबह क्लासेस क्लासेस लो ना। होते तो अच्छा रहता, बट 11 के क्लासेस इवनिंग में होते हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो टाइम टेबल ऐसा होता है, 11 इवनिंग होता है, 12 मॉर्निंग होता है जनरली, तो वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आती है यदि मॉर्निंग बैचेस करते हैं। स्टिल देखते हैं कि कर सकते हैं तो कर देंगे। तो उल्टा कर सकते हैं हम, 12th का इवनिंग में और 11th का मॉर्निंग। ऐसा है, क्या होता है मीटिंग में हम अपने ओपिनियन पुट कर सकते हैं। लाइक फॉर व्हाट? ओपिनियन के बजाय मैं बोलूंगा कल जो सेशन है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन पुट योर फॉरवर्ड योर प्रॉब्लम्स, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स। क्लियर? और ओपिनियन मतलब जैसे लेक्चर मॉर्निंग इवनिंग, मतलब ये प्रैक्टिकली अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सभी को कम्युनिकेट ऐसा ही किया गया है। तुम्हें लग रहा है 2 बच्चों को 10 बच्चों को लग रहा है कि नहीं मॉर्निंग होना चाहिए, बट डे 1 से जब एडमिशन लिया गया था तो सिमिलर चीजें कम्युनिकेट की गई हैं। तो हर किसी का अपना कुछ रूटीन रहता है, यदि कोई सीबीएसई का बच्चा है, कोई मॉर्निंग में उसके स्कूल चल रहे हैं, तो फिर वो कुछ नहीं किया जा सकता।
तो जो कमिट किया गया उससे थोड़ा सा डेविएट होना मुश्किल होता है, स्टिल मतलब वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, आई थिंक पॉसिबल। अच्छा दो एक और ये दूसरा लॉजिस्टिक, इफ आई एम गोइंग टू टेक योर लेक्चर, आई हैव टू टेक लेक्चर इन 12th आल्सो, तो मुझे यदि मैं एक ही टाइम पे सारे बैचेस में लेक्चर नहीं ले सकता, तो लॉजिस्टिकली टाइम टेबल वाइज भी सारे चैलेंजेस होते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा कर दिया जाए। उसमें हाँ कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस को लेके भी डिस्कशन हो सकता है, मतलब हम हमारे एंड से कल थोड़ा सा बेसिकली कम्युनिकेट करेंगे परफॉर्मेंस जो लास्ट टेस्ट में था। नंबर जैसा मैंने पहले भी बोला मैटर नहीं करते, बट मैटर ये करता है कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आई थिंक अब तुम बहुत यूज्ड टू हो गए सिस्टम के कि कैसे सिस्टम चल रहा है, जेई की प्रिपरेशन कैसे हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। सर इस संडे का जो टेस्ट है सर, उसमें क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया है? कल टेस्ट है तुम्हारा? सर कल नहीं सर, तो फिजिक्स का है पर नेक्स्ट संडे जो है। हाँ 6 जून को पेपर है, वो पेपर कोटा से आएगा। सर वो यह है क्या क्या बोलते हैं उसे, कोर्स प्लानर? कोर्स प्लानर मतलब देखो ऐसा है, कोर्स प्लानर जो हमारे पास आया है वो ऑफलाइन का है, ऑनलाइन का नहीं आया है। ऑफलाइन में चीजें बहुत फास्ट चलती हैं, जिस डेट पे तुम्हारा स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग तो आज तक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाना चाहिए, और भी मैं आज तक एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर देता ना तो खत्म ही हो जाता सबके लिए। तो चीजें थोड़ी वेरी कर जाती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, क्लियर? तो भी ऑनलाइन का वापस से मॉडिफाइड होकर चीजें नहीं आई है ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए बड़ा हुआ है, मैं सारे शेयर कर सकता हूँ, बट वो मीनिंगफुल नहीं है। इवन टेस्ट की डेट वगैरह भी चेंज हो गई है। क्या था वेलोसिटी का वैल्यू? 2 पाई k स्क्वायर। यही था। यस सर। n स्क्वायर h स्क्वायर 2 into 2 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर रेडियस का रिलेशन। nz को टर्म को बाहर ले लिया, if you put value of all this constant 0.529 10 to the power minus 10 मीटर SI यूनिट एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया है। इसे हम r नॉट भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर बाय z, r is proportional to n स्क्वायर बाय z, r नॉट इज कांस्टेंट। जो बाहर लिया बाहर जस्ट जो वेरी कर सकते, all these are universal constant that depends on number of orbital atomic number, जो वेरी कर सकते हैं बाहर। ओके सर। संयुजा सेजल वाग, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. वरद, अभिजीत, यस सर। चलो एक क्वेश्चन दो इस पे बेस्ड, जल्दी भागने की मत करना। वैसे 50 बच्चों से स्टार्ट होता 42 हो गए, मतलब इतना पेशेंस तुम सवा घंटे के क्लासेस में लगा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? सर 1 मिनट प्लीज। गए। मैंने रब कर दिया तब तुम 1 मिनट बोल रहे हो। कोई नहीं, हम वीडियो देख लेना अपना पार्ट, नहीं तो कभी भी ऐसा लगे ना थोड़ा सा रह गया है, हैबिट में रखना, रह गया सब रब करने वाले तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके सर।
Find velocity and radius of first and second orbit of hydrogen and helium plus in SI unit. चलो रेडियस को एंगस्ट्रॉम में बता सकते हो, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, रेडियस को एंगस्ट्रॉम। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि कितने आंसर तुम्हें रिपोर्ट करने हैं इस क्वेश्चन? 4 आंसर। 8 सर। 4 पक्का? 8 आंसर रिपोर्ट नहीं करने? 8 करने। 8 करने सर। 8। चलो सोल्व करते जाओ, 8 आंसर रिपोर्ट करने हैं तुम। यस सर, सॉल्व हो गए। ठीक है, सर मास हम रिलेटिव मास लेंगे ना? मास मास कहां से आ गया? नो सर, अलग अलग ही। मैं दूसरे इससे कर रहा हूँ ना, तो इसलिए। नहीं नहीं, कौन से दूसरे से कर रहा है? रेडियस का ये फॉर्मूला यूज करना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z। वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बोला है ओके मैंने, सर। मीटर पर सेकंड और एंगस्ट्रॉम में। नो सर, वो दूसरा रेडियस वाला अरे वो लिखने में कैलकुलेशन थोड़ी नहीं। होगा, एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ी कर पाओगे तुम उसका। ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर्मूला उसका यूज करना होता है यदि वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए तो। हाँ, आंसर ऑप्शंस m k z उसी टर्म में, तो फिर वो बात उसके अकॉर्डिंग करती है। क्या एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में से होमवर्क दिया गया है पहले कभी? इसमें से कभी होमवर्क दिया है नहीं दिया मैंने कभी किसी? नहीं दिया है सर। नो आज सर, तक नहीं नहीं दिया, हुआ? नहीं दिया। स्टार्टिंग में नो तो किया सर। है। ओके, तब तो फिर एक्सरसाइज 1 से ही स्टार्ट करते हैं।
सर उसमें 16 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। 8 द वर्ड ग्राउंड स्टेट मींस फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान रखना ना, ग्राउंड स्टेट यदि कहीं आता है तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट एज्यूम करना। सर हो गया। ओके चलो, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फिक्स है 1.529, n is 1, z is 1, फर्स्ट ऑर्बिट एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज 1, इसका आंसर आया 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब आते हैं हम हाइड्रोजन का रेडियस सेकंड ऑर्बिट में। सो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन सेकंड ऑर्बिट 0.529, n is 2, z is 1, n square by z, so roughly इसको 0.53 एज्यूम करो, 0.53 into 2 square that is 4, ये आ जाएगा 2.122। 2.122। so radius of first orbit of hydrogen, first orbit of helium, second orbit of hydrogen, helium का करना होगा तो सिर्फ z जो 1 लिखा है इसको यहाँ पर भी by 2, यहाँ पे भी by 2, so n square 1 as it is first orbit का, z2 आ जाएगा, this by 2, this by 2। क्या रेडियस क्लियर है दोनों के? यस सर। सर हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होगी ना? गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहा था सर। ये एन और जेड आप बात करें हाइड्रोजन, क्या सारे हाइड्रोजन लाइक एटम में वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट पे रहेगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट का हम रेडियस वेलोसिटी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्टे इन फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर, बट यू मे सप्लाई एनर्जी to take electron from lower orbit to higher orbit। इलेक्ट्रॉन अपना नॉर्मली फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, हम फोर्सफुली उसे फोटोन के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करके फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, तो हम फोर्सफुली लेकर जा सकते हैं। यदि वो वहां जाएगा तो कितना रेडियस होगा? गॉट इट? सर जो हाइड्रोजन है उसको ट्रिटियम अप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट तक जा सकता है इलेक्ट्रॉन उसका, तो उसमें क्या अप्लाई हो सकता है? तो अगर हमने ट्रिटियम को अप्लाई हो सकता है क्योंकि वो सेकंड ऑर्बिट तक जा सकता है ना। नहीं समझा, क्या बोल रहा है? प्लूटोनियम? हाइड्रोजन है ना उसका वो थर्ड रहता है ना क्या आइसोटोप, वो उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है ना, मैंने उसको मतलब एज्यूम करके अप्लाई किया है। हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप है, उसमें का सिर्फ डिफरेंस है न्यूट्रॉन्स उसमें दो एक्स्ट्रा हैं, उसका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रिटियम और हाइड्रोजन बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। चलो हीलियम प्लस का वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट 2.18 10 to the power 6 z by n, z is 2, n is 1। हीलियम प्लस का वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट 2.18 10 to the power 6 2 by 2। तो ये हीलियम प्लस के लिए वेलोसिटी निकाल लिया, हाइड्रोजन के लिए रेडियस निकाल लिया था। चार आंसर मैंने निकाले, चार तुम्हारे लिए छोड़ दिए। इज दैट ओके? यस सर।
चलो सेशन एंड कर दें हम। होमवर्क का पिक्चर में ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूँ, राइट।